रेडियो डिजिटल की दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी बातें कह पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और आज हर रोज़ आपको नए से नए पॉडकास्टर्स सुनने को मिल रहे हैं, सेलिब्रिटी पॉडकास्टर्स से लेके कंटेंट क्रिएटर पॉडकास्टर्स, जिन्होंने पूरे कोविड के टाइम लोगों का बड़ा साथ दिया। लोगों ने पूरा वक्त बैठ के पॉडकास्ट सुने हैं। और पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है, आप सुनते रहें, गाड़ी चला रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, यू डोंट रियली नीड टू look at a screen. So I think it's a great medium, and I'm glad that HT Smartcast is appreciating people from this medium. Cool. Thank you. ठीक है। मैम लोग क्या मैम मैम लोग क्या मैम होल्ड आगे जाए। Oh, have lights, please. कम है मॉर्निंग यस हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हो आप? अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। इट्स अ पॉड मास्टर्स अवार्ड, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस? Well, I'm here to represent my daughter, and I'm very excited for her. I'm very proud of her, and I'm thrilled to be here to collect the award. But how do you see the change? People are getting more into podcasting. People are started to do a podcast. Even the celebrities are doing the podcast. How do you see this change? I think it's wonderful. It's a great way of reaching out to people. It's you can carry it wherever you go. You can listen to it on a train, on a bus, while you're in a waiting room, and I think it's fantastic. It's just another wonderful medium of getting it. Okay, but what about Navya? Is she trying to get into Bollywood, or is she like? I think you're all very well acquainted with the work Navya does, and she has her hands full, and I don't think Bollywood is the way to go. Thank you so much. Thank you. Hi, how are you? Good, thanks. Is this Thank you. done? वहाँ का हो गया? आए चले अंदर? अरे ये इनका नहीं हुआ उधर हुआ। Oh, I'm हाँ, so sorry. Thank you so much for joining us, sir. नॉट एट ऑल। आई एम गुड यार। How excited are you for this? यार आई थिंक पॉडकास्टिंग की अपनी अवार्ड्स हो रही हैं, दैट्स अ लवली थिंग, बिकॉज रियली आई थिंक एक इकोसिस्टम तब कंप्लीट होता है जब किसी चीज़ की एक अवार्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। और मेरे काफ़ी सारे दोस्त और मैं खुद भी चूँकि पॉडकास्टिंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है दैट you now find when there's a Ranveer Alabadia, Zakir Khan, whether it's a Navya or there's Raj Shamani, there's so many people who are doing podcasts or whatever, so I think it has become a new medium for the youth. तो अच्छा लगेगा देखने के लिए कि who wins, who are the people who are making it. But also say ये भी जानना चाहिए, many celebrities, they don't want to reveal their secrets of life in front of media, but they are revealing their secrets, in front of other celebrities, like on podcasts. So what do you have to say when media, opens their secrets? So they are like, why you are, entering into our life? And now this is podcast, they are opening their self. What do you have to say on that? देखिए, see, you must understand that when नेहा धूपिया started her podcast, सबसे पहली बात जब पॉडकास्ट में वीडियो नहीं था, people were even more honest, because आपको लगता है ना कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हैं, right? When media comes, we all put on a lens first of saying that, oh, you're going to quote us. In a podcast, it becomes very conversational. और अगर दो दोस्त बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बातें कुछ ऐसे खुल के निकल के आती हैं. एंड people, even when they are podcasting nowadays, I must tell you that many of us as podcasters, once the episode is done, send the entire episode to the celebrity to say, do you like? मैंने इम्तियाज़ के साथ करी, जाकिर के साथ करी, बहुत लोगों के साथ करी. मैं पहले एपिसोड, और हम लोग की प्रैक्टिस होती है, हम पहले उनको भेजते हैं कि आर यू ओके विद दिस, और उनको पता है कि कोई चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं निकाली जाएगी. Unfortunately, podcasters are not in the business of making daily news.
वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू बिल्ड एन ऑडियंस ओवर टाइम. तो उसमें ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. Again, you know, as you said, media quote करती है. हाँ आपके ही पॉडकास्ट से वहाँ पर देन तो वो quotes आ ही जाते हैं. हाँ बिल्कुल. लेकिन क्या होता है कि पॉडकास्ट जब आप 3-4 घंटे रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आउट ऑफ, सबको प्रॉब्लम कोट से नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट से है. उसी दिन जो था वो मनोज वाजपेयी कह रहे थे कि उन्होंने बात करी कि अपनी किसी फिल्म के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भाई सो एंड सो की वजह से मुझे ऐसा लगा. अब क्या हुआ, उसमें हो गया कि इट सो एंड सो वाज अ फेलियर. ना उन्होंने वर्ड फेलियर नहीं यूज़ किया था. तो जब लोग शब्द डालने लगते हैं देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इफ यू हैव टू कोट देन कोट एग्जैक्टली एज इट इज, इट्स स्टिल फाइन. बट आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ, देखिए सेंसेशनलिज्म की दुनिया में हम सब जीते हैं. तो वो आज 10 सेकंड की रील में आप लोगों का कैसे इंटरेस्ट बना सकते हैं, दैट बिकम्स द कोर ऑफ इट. सो आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर जॉब टू द बेस्ट पॉसिबल डिग्री. Thank you so much. Not at all. Thank you. Thank you. Thank you. Look. Camera. Okay, ma'am. Press button. Yeah. Mics? No worries. हाँ जी. हाँ, पहले तो मेरा नाम नैना भान है और मैं एक पॉडकास्ट पे काम करती हूँ जिसका नाम है मोमेंट ऑफ साइलेंस. मैं और मेरी को होस्ट साक्षी शिवदसानी, जो एक बहुत ही फ़नी महिला है, एंड हम काफ़ी नए हैं पॉडकास्टिंग में. तो इट्स रियली लवली दैट वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दिस वेयर सो मैनी पॉडकास्टर्स जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और इतने विशेष सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, उनसे उनके साथ वी कैन इंटरैक्ट. सो दैट्स रियली नाइस. हाँ जी. मुझे तो बड़ा मज़ा आता है. मैंने पिछले साल 25,000 मिनट पॉडकास्ट सुना. मैं गाने नहीं सुनती, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ. मैं काम कर रही होती हूँ घर पे, मैं जॉगिंग कर रही होती हूँ, नहा रही होती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉडकास्ट चलता रहता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन रियली फिट इन योर लाइफ वेर एवर यू आर, वेदर यू कम्यूटिंग, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इट्स गॉट द स्पेस दैट इट्स गेटिंग. थैंक यू. दैट्स इट ना. थैंक यू. आप आ जाइए. राज भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया. Congratulations for Cannes Red Carpet. थैंक यू सो मच. What do you have to say about podcasting, you know, and podcasters all tonight? Tonight it's a big moment for all the podcasters because I think finally now the whole country has started accepting podcasts as a new medium and everybody is enjoying. There are so many genres. I'm so happy. I'm looking forward to actually discover new podcasts as well tonight. And it's a pretty great moment because we're just getting started and I think there's a long way to go. राज भाई, काफ़ी लोग Cannes Red Carpet. Can you please share your experience? Everything was great there. I think the whole idea was to go there, understand, you know, what the whole culture is, what different parts of the world is celebrating in the movie world, and spread awareness around the world. And I really loved that finally our Indian movie, they won the award there. So that was a pretty exciting moment. Sure, you were saying something. या राज भाई, काफ़ी लोग पॉडकास्ट में आ रहे थे. हाँ जी. आप करते थे, फिर रणवीर थे और बहुत सारे लोग थे. काफ़ी लोग पॉडकास्ट में आप शुरू कर सकते. काफ़ी 20, 22, 23 साल के लौंडे भी आजकल शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? चेंज कितना आ रहा है और कंपटीशन कितना बढ़ गया आप लोगों के लिए? आई डोंट थिंक कंपटीशन एट ऑल बढ़ा है. आई थिंक अभी 1000, 5000 और पॉडकास्ट आने चाहिए, उसके बाद ही चेंज एक्चुअली बड़ा बनेगा. इतनी बड़ी कंट्री है, 150 करोड़ लोग हैं इधर, और उनमें सिर्फ क्या 15, 20, 50 पॉडकास्ट थोड़ी चल सकते हैं. सो आई थिंक अभी तो बहुत कम है और बहुत बड़ा मार्केट है. इनफैक्ट बहुत बड़ा मार्केट अनटैप्ड है, जिनके पास आज तक फ़ोन नहीं पहुंच पाया है. तो जिस दिन उनके पास फ़ोन पहुंचेगा, इंटरनेट पहुंचेगा, फिर उसके बाद उनके पास सही बातें पहुंचेगी उनके इंटरेस्ट की. सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे लगता है 20-22 साल के, आई थिंक 17, 18, 19 सबको स्टार्ट कर देना चाहिए. One last question. अगर मैं पॉडकास्ट की बात करूँ आपके, तो पर्सनली आप किसे पॉडकास्ट पर बुलाना है जो अब तक का ड्रीम आपको फुलफिल ना हो? वाह, ऐसे तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूँ आपको.
यार आई रियली फील वन डे मतलब मैं शाहरुख खान सर को बुलाना चाहूँगा एक दिन एंड द रीज़न इज़ वेरी पर्सनल बिकॉज मुझे लगता है कि जितने और मेरी लिस्ट में गेस्ट हैं सारे उनमें से उन्होंने ना सारे टिक कर दिए हैं बिकॉज इफ़ यू लुक एट माई होल पॉडकास्ट हमारा पॉडकास्ट स्टैंड करता है हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप कैसे ग्रो कर सकते हैं। आई थिंक उन्होंने तीनों मास्टर कर दी है। वो जब देखो जब उस बॉडी में आ जाते हैं जब उन्हें चाहिए होता है, उनकी रिलेशनशिप्स और फैमिली बहुत अच्छी है, उनके पास वेल्थ बहुत अच्छा है, उन्होंने दुनिया लोगों में प्यार बहुत कमाया है, तो उन्होंने आई थिंक सारे गेम जीत लिए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनसे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर द होल ऑडियंस एंड फॉर अस। Also, competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. So, how much you work on your podcast personally? Because celebrities भी open कर सकते हैं, normal common people भी, और आप लोगों ने तो पहले start कर ही दिया था. तो competitions की बात करें तो फिर मुझे नहीं लगता कंपटीशन बढ़ा है। आई जेन्युइनली डोंट थिंक सो। अगर आप देखो कि कंपटीशन बढ़ा है, आप ऐसे बोल रहे हो, लोग भी तो कितने सारे हैं जो कभी पॉडकास्ट सुनते नहीं थे सुनने लग गए। तो मुझे लगता है कि अभी मार्केट बहुत बड़ा बाकी है। सेलिब्रिटीज़ क्या, मुझे लगता है हर नॉर्मल इंसान को पॉडकास्ट बनाना चाहिए अगर उनके पास कुछ एक मैसेज है जिससे वो दुनिया चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अच्छी बातें की जा सकती है, तो बहुत स्कोप बाकी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कंपटीशन है। रही बात हमारी, तो हमारा प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम लोग हर पॉडकास्ट से पहले और बनाने के बाद एडिटिंग के टाइम पे भी सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं, क्या इस पॉडकास्ट के थ्रू हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं। अगर हम नहीं सिखा सकते तो हम वो पॉडकास्ट ही नहीं बनाते और यहाँ तो डिलीट कर देते हैं। अच्छा, वेंकटेश अय्यर के पॉडकास्ट के बाद आपके साथ जो हुआ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, मिलियंस में व्यूज़ आए, लेकिन उसके बाद एक डिमांड और आ रही है कि माई भाई को लाइए पॉडकास्ट में। भाई आपकी अगर कनेक्शन हो तो बुला लो। लेकिन आपके कनेक्शन बहुत ज़्यादा है भाई, काफ़ी लोग आपको जानते हैं, तो कभी ट्राई किया आपने माई भाई को लाने का? अभी तक ट्राई नहीं किया, बट मुझे लगता है कि हम उनके लिए अभी रेडी नहीं हो पाए। अब उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक दिन ज़रूर लेके आएंगे, वो हमारी ड्रीम लिस्ट में है एंड उनसे बहुत चीज़ें सीखनी है हमें। तो डेफिनेटली आप वेट कर सकते हैं कि एक दिन ज़रूर होगा वो पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Look, camera. Right में, right. Thank you. Right. थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हुई है ना थोड़ा। सर इस तरफ आइए। वेट। Thank you. पीछे हेलो पीछे Jimmy sir. Jimmy sir इधर. सर राइट हम इधर. डावीकडे Jimmy sir. लोक डावीकडे सर राइट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट बाय उनके लेफ्ट. सर दूंगा. जी Okay, so hi, Jimmy, personally want to know, how much excited you are for podcasters? See, I think it's a great initiative by Hindustan Times and Fever for these Podmasters Awards. I think the podcasts and voiceover shows and audio series and everything is like catching up like big right now. And yeah, it's a great thing for all the voiceover artists and all the podcasters and everything. And I think in the years to come, it's going to be huge. So it is already internationally, but I think over here, give it another year. I think it's going to be huge. So I think it's a great thing. Also, Jimmy, ये भी जानना चाहेंगे, podcast पर आने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ की सीक्रेट्स भी बता रहे हैं. How much you are open to share your secrets? मैं जब आऊँगा तब बताऊँगा, अभी क्या, अभी तो मैं किसी पॉडकास्ट पे नहीं हूँ यार. हाँ, Are you open to share? I've whichever shows I've been to, I've tried to be as open as possible. That's fine. Okay. Thank you so much. That's it. Thanks. सुनो क्या सर सेंटर लोग. सुनो क्या अरे एक मिनट. Thank you. थैंक यू सो मच. Ready? How much you are excited
I'm very excited because I started my career with Hindustan Times as a journalist, and all these years later I'm nominated for multiple awards, so it's like full circle for me to come back to HT. Talking about podcast, with celebrities, Yeah. which actor you want to podcast? Zakir Khan, Zakir Bhai, I think is one of the most beautiful, thoughtful, expressive, vulnerable man, and I'd love to hear him. He was on Be a Man Yaar, my show as well, and I think he should be speaking a lot more regularly than he does. Also, your video got viral. What do you have to say on that? I mean, very fortunate that clips of our show are going really viral. The intention is to get more people to have conversations that matter, and yeah, thankfully, like when you have stages like this and these things get celebrated, it helps the conversations go further as well. So really grateful to be here. Thank you so much. Someone look this side, please. Yeah, camera look. Camera look. Sir, one camera look, please. Thank you. Thank you. Julian, bite Yes, लेना. Sir, bites. Yes. Thank you so much for joining us, sir. कितने excited है? Podmasters Award है. Podcast की तो दुनिया है आजकल. Hey, very excited, yaar. Of course, all of us work and we think that it will be appreciated, acknowledged, people will notice. You don't create content just for yourself, क्योंकि अगर खुद के लिए हो तो फिर रिकॉर्ड ही क्यों करेगा, फिर पब्लिश ही क्यों करेंगे. So obviously this is exciting. I'm looking forward to it. अच्छा, कौन से podcasters की आप ना एकदम तहे दिल से बैठ के देखते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है? नहीं, मैं तो बहुत सारे देखता हूँ एक्चुअली, और आई वोंट पिक वन. अभी वो रौनक का एक नया है विच इज़ वेरी नाइस. इज़ गॉट सम ग्रेट गेस्ट. रणवीर के साथ मैंने खुद भी किया हुआ है, सो ही इज़ समवन हु आई रियली लाइक. बट येस, आई डू consume a lot of content. I go even for geopolitics and also वर्ल्ड कप के लिए काफी एक्साइटेड है लोग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में. क्या लगता है इस बार इंडिया को झंडा लहरा कर आएगी? अच्छा तो करना चाहिए. आई मीन से T20 वर्ल्ड कप, दैट टू इन द वेस्ट इंडीज़, इतना आसान तो नहीं होगा, पर उम्मीद यही है कि अच्छा करें, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि कुछ लोगों का ये शायद ही आखिरी हो. सो यू रियली वांट देम टू गो अहेड एंड विन द ट्रॉफी. रह गए थे हम 23 में. होपफुली दैट थिंग इज सेटल्ड दिस टाइम. अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का ये आखिरी हो सकता है क्योंकि ही इज ओवर 37 नाउ. See, never say never, but yes, next World Cup is in 2027, so he's not getting younger. The possibility है. Again, the man will decide when he wants to call it quits, but the team should rally around. If it is to be the last one, then he should walk away with a trophy in his hand, क्योंकि वो एक चीज़ 2007 में मिली थी, but then since then he has done a lot, but hasn't won a trophy yet. So 2007 की आपने बात की तो माही भाई, correct. माही भाई 2000 IPL 2025 खेलेंगे नहीं खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है ओवर द इंटरनेट. Correct. चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, सब ये सोच रहे हैं कि माही भाई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे. तो आपको कितना पता है इस बारे में? MS का एक्चुअली बताऊँ, मैं साक्षी को भी नहीं पता होगा. आई मीन जो वाइफ को ना पता हो तो किसी को क्या पता होगा, वेरी ऑनेस्टली. ही लुक्ड ऑल राइट फ्रॉम अ वेरी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. इफ ही इज़ फिट ही इज़ हैप्पी टू प्ले, पर दिस ईयर देयर विल बी अ बिग ऑक्शन एज वेल. तो वो एक डायनामिक है, एंड विद MS यू नो कि ही विल पुट हिज टीम अहेड ऑफ हिमसेल्फ. सो वो एक डायनामिक ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिग ऑक्शन एज यू सेड. रिटेंशन 3 years is way too far for him. He's 42, so वो मुश्किल है. इंडियन हेड कोच की बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा लोग बोल रहे हैं गौतम गंभीर बन सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग बन सकते हैं. लोग BCCI ने MS धोनी को अप्रोच किया टू कन्विंस फ्लेमिंग, राइट? आप क्या कहेंगे? वेल, जो भी बनेगा यार, इंडियन क्रिकेट, आई थिंक हुएवर कम्स इन नाउ, उसको ट्रांजिशन मैनेज करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग. ट्रांजिशंस आर वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू नेविगेट वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ लोग जा रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं. यू ऑल्सो फाइंड टर्बुलेंस, क्योंकि जब नई टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो
there is a chance कि immediate success ना मिले, but then you still have to navigate through it. So whoever becomes, I really hope he does a great job, because ये अगले 2-3 साल इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट 10 से 15 साल फ्यूचर जो शेप करने वाले हैं. So whoever is there, if it's Gautam, beat Gautam there. सवाल, विराट कोहली के वर्ल्ड कप सिलेक्शन को भी लेकर काफी बात चल रही थी.